السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں زی ٹی وی پاکستان۔ آپ بھائیوں کے لیے، کاشتکاروں کے لیے ہم ایک بہت ہی اچھا اور منفرد پروگرام ہمارا کسان لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کاٹن پہ، کپاس پہ، جو ہمارے ملک کی ایک بہت ہی اہم فصل ہے جسے چاندی کا ریشہ بھی کہا جاتا ہے، اور ہمارے ملک کی جو امپورٹ ہے اس میں بہت ایک مقام، ایک درجہ رکھتی ہے۔ تو کاشتکار بھائی اس کے حوالے سے کافی عرصے سے پریشان ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے ہماری کاٹن کی جو پیداوار ہے اس میں بہت کمی آ رہی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے، مسائل کیا ہیں، کاشتکار کو کون سے مسائل درپیش ہیں، اسی حوالے سے ہم آج کے اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ اس وقت ہم جنوبی پنجاب کے سیکریٹریٹ ضلع ملتان کی تحصیل صدر میں ایک مثالی کاشتکار ملک مظفر اٹھنگل صاحب کے ڈیرے پہ موجود ہیں، اور کچھ کاشتکار ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ہم بات کریں گے کاٹن پہ، رائس پہ، کارن کراپ پہ، موجودہ جو فصلیں ہیں ان پہ بات کریں گے کہ کاشتکار کو جو ہے کن مسائل کا سامنا ہے، کون کون سے مسائل درپیش ہیں، اور ہماری کپاس کی جو پیداوار ہے گزشتہ سال کی نسبت اس سال پھر کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ وائٹ فلائی اور سبز تیلے، کالے تیلے نے اینڈ پہ جا کے حملہ کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی پیداوار کم ہے۔ اور کاشتکار بھائی کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے زی ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم موقع پر اس اہم ٹاپک کے پر گفتگو کرنے کے لیے آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ جیسے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک زرعی ملک ہے، اور زرعی ملک ہونے کے باوجود بدقسمتی ایسی ہے کہ ہماری حکومتی سرپرستی اور جو مقامی طور پہ ہمارے افسران ہیں ان کی طرف سے کوئی کاشتکار کو اویئرنیس، آگاہی نہیں دی جاتی۔ سب سے پہلے اگر ہم لیں اس بات کو کہ اس کا جو بیج ہوتا ہے، ہمارا سیڈ ہے، وہ بیسک طور پہ سیڈ بھی ہمیں خراب مل رہا ہے۔ اگر سیڈ ہمیں درست ملے گا تو ہماری فصل اچھی ہوگی۔ اور اس میں سب سے جو اہم فیکٹر ہے وہ مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے۔ آپ کا کھاد ہے، پانی ہے، بجلی ہے، اس پہ اتنے زیادہ اخراجات اٹھ رہے ہیں کہ ان کے مقابلے میں کسان کو کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہو رہی۔ ہمارا ملتان، جنوبی پنجاب خاص کر، اب یہاں جو ایک زرعی جگہ جس میں ہمارا آم کے حوالے سے اور کپاس کے حوالے سے ایک مثالی صورتحال تھی، ادھر پرائیویٹ کالونیز آ کے پہلے انہوں نے تباہی مچا دی ہے۔ باقی رئی خیف جو فصلیں ہیں اس پہ اٹیک ہو رہے ہیں۔ کوئی مینوفیکچرنگ کاسٹ اتنی بڑھ گئی ہے کہ جس میں کھاد کی قیمتیں جو ہیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ لاسٹ گورنمنٹ نے اس میں کافی ہمیں سبسٹائز کیا تھا، اس میں ہمیں کھاد کے حوالے سے اور ٹیوب ویل کے کنیکشن پر جو بجلی کے یونٹ پہ استعمال ہوتا تھا اس پہ بھی ہمیں کافی طور پر ریلیف ملتا تھا، لیکن اس گورنمنٹ نے کوئی ریلیف ہی نہیں دیا، بلکہ حتیٰ کہ یہاں ہماری جو درمیانی جو مڈل مین ہے وہ پیسے زیادہ لے لیتے ہیں۔ وہ ایک کسان جس کی اتنی محنت ہے، جس پہ ٹوٹل دار و مدار ہے، اس کے بچوں کے اخراجات ہیں، اس کا جو نسل در نسل جو باپ دادا سے اتنی بڑی پراپرٹی کے مالک ہو کر بھی ادھر مقروض رہتے ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس کو فصلوں کا جو ہے اس کا حاصل پورا نہیں ملتا۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو کپاس ہے کم از کم 6,500 سے 7,000 فی من اگر خرید کی جائے تو تب جا کے جو کسان ہے تو وہ خوشحالی کی طرف گامزن ہوگا۔ اور اس حوالے سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی زرعی ایمرجنسی بھی نافذ کرے، اور جتنا ممکن ہو سکے تو وہ کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے کوشش کرے۔ وزیر اعظم زرعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت گزشتہ سال کاشتکار بھائیوں کے لیے 16 پروجیکٹ سٹارٹ کیے گئے، جس کی لاگت 300 ارب روپے کے منصوبہ جات تھے، اور اس میں کچھ واٹر مینجمنٹ کے، سولر سسٹم کے، زرعی سبسڈی کے، اس کے علاوہ کھادوں پہ سبسڈی، پوٹاش پہ سبسڈی، اور دھان، چاول، کپاس اور دیگر جو ہماری فصلیں ہیں ان پہ سبسڈی کا اعلان کیا گیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے وہ جو پروگرام تھا وہ بھی لیٹ کا شکار ہوا، وہ بھی ان کرائسس سے گزرا، ان مسائل سے، کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے چند ماہ سے ہمارے ملکی نظام جو تھا وہ تھوڑا سا کرائسس سے گزر رہا تھا کووڈ-19 کی وجہ سے۔ اسی حوالے سے اس کی جو ہمیں قسط ملنی تھی وزیر اعظم زرعی ایمرجنسی
प्रोग्राम की, जिससे किसानों को रिलीफ मिलना था वो भी टाइम पे नहीं मिल सकी। और काश्तकार भाइयों को उस प्रोग्राम में से चंद काश्तकार होंगे जिन्होंने रिलीफ हासिल किया, जिन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी मिली या जिन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से उन मंसूबों में ऐड किया गया। आज उसी हवाले से हम एक और भाई से बात करते हैं। एक और काश्तकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वज़ीर आज़म ने जो सब्सिडी का ऐलान किया था कि मुख्तलिफ फसलों का सीड है, जिसमें चावल का सीड आ जाता है, काटन का सीड है, मूंग, तिल, दीगर फसलें, मतलब कि जिनका आला क्वालिटी का गवर्नमेंट ने वादा किया था कि उसी मंसूबे के तहत हम काश्तकारों को जो है फसलों में उसका बीज प्रोवाइड करेंगे। आइए उनसे पूछते हैं कि आज तक आपको किसी बीज से कोई रिलीफ, कोई सब्सिडी, कोई चीज़ मिली? भाईजान कोई पैकेज नहीं मिलिया। खाद का कम अज़ कम 100 बैग मेरे को इस टाइम मौजूद है, जिहदे उत्ते चिप्पां लगियां हुई हैं और इन्होंने मैसेज करवाए है। अज तक एक मैसेज की भी रिप्लाई वापस नहीं आई। वज़ीर आज़म की सब्सिडी ये किहड़े मकसद की है जिहड़ी किसान तक पहुँच ही नहीं रही। उन्होंने चाहिए कि डायरैक्ट जिहड़ा खाद का रेट है अगर 3000 है तो उन्होंने 2500 रुपया कर देन। अगर 500 रुपए की एक चिप उन्होंने लाई है तो वो फैक्ट्रियां नहीं फायदा हो रहा है, कोई किसान तक 1 रुपए की नहीं पहुँची। मैं इस टाइम 200 या 100 बैग मेरे को मौजूद है जिहदियां चिप्पां ना लगे, एक रिप्लाई वापस नहीं आई है इस टाइम तक। जिहड़ा बाकी धान का बीज है, सीड गौरमेंट की सीड तो अज तक सानू नज़र ही नहीं आई भी किहड़ी जगह तो सानू गौरमेंट की सीड का बीज मिलेगा। असी तो प्राइवेट दुकानों तो अज तक बीज लिया और नाकस बीज है इस टाइम मौजूद खड़े है फसलां जिन्हां दे विच सारा मिक्सिंग धान मौजूद है इस टाइम, जिहदी फसल दे तो की सानू पैसे दे मिलने हैं, अज तक रेट सानू पूरा नहीं मिलिया। बाकी गंदम तो गौरमेंट की समझ आती है भी उन्होंने खरीद कर लेंदी गौरमेंट। कपास या मकई या जिहड़ा मुंजी है ये अज तक किसी गौरमेंट के बंदे ने अज तक खरीदे ही नहीं है, प्राइवेट लोग ही खरीद करते हैं, जिन्हों कि इन्होंने 1000 रुपये तो लैके 1500 1800 रुपया खरीद होएगा किसान कोलों। लिहाजा कि यदा अज तक भी जड़ा ताजा का रेट चल रहा है 3200 रुपया 3500 रुपया फी मन रेट चल रहा है। चावल का रेट नू चेक करके वेख लैन भी किसान नू की रेट दे रहे हैं। ज़्यादातर किसानों का यही कहना है कि उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से वॉचर सिस्टम सब्सिडी का इजरा किया गया था, जो ई वॉचर के ज़रिए आप अपने मोबाइल से मैसेज करके 8070 से वो सब्सिडी की रकम जो है वो आप हासिल कर सकते थे, उसमें किसानों को परेशानियां जो हैं, मसाइल जो हैं वो सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे घरों में वो खाली बैग जिनके ऊपर वो चिप्पें, वो ई वॉचर जो हैं उनके ऊपर तो मौजूद हैं, लेकिन एक तो हमारे मोबाइल से मैसेज नहीं जाता। अगर मैसेज चला जाता है तो साल हर साल से हमारी जो पेमेंट है वो बकाया जात गवर्नमेंट की तरफ से पड़े हुए हैं। नित नए उनके तरीके जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब उनका कहना है कि वेरिफिकेशन का ऐलान किया गया कि जो काश्तकार जो हैं अपने ज़राअत ऑफिसर से, फील्ड ऑफिसर से जाके अपने आप की वेरिफिकेशन कराएगा, अपनी तस्दीक करवाएगा, अपनी ज़मीन की फ़र्द मलकियत लेके उनके पास जाएगा, तब ही वो वॉचर सिस्टम जो सब्सिडी है उनको मुहैया की जाएगी। तो मेरे साथ एक और काश्तकार मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि हम अपनी फ़र्दें लेके जब ज़राअत ऑफिसर के पास गए हैं तो वो यही कह रहे हैं कि जो वेरिफिकेशन का सिस्टम था वो जस्ट 2 दिन ही चल सका। उसके बाद हमारे पास जो ऐप है, हमारे पास जो डिवाइस दी गई है पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, वो काम नहीं कर रही, वेरिफिकेशन नहीं हो रही। तो आइए एक किसान और मेरे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। असां अपनी फसल काश्त की है और असां खाद दी बोरियां लईयां जिस ते मोहरां लगी हुई, लेकिन सानू सहूलत नहीं मिली। हुकूमत की तरफों जड़ा ऐलान थी आई सानू उस दी तरफों सहूलत नहीं मिली। लिहाजा सानू जड़ी खाद दी मोहरां की तरफों सानू सहूलत मिल नहीं आई। सानू सहूलत मुहैया किया वने ताकि सारी फसल नुकसान होने तो बच सके। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि हमने फसल काश्त की हुई है, जब हमने खाद उठाई है उस पर हुकूमत की तरफ से सब्सिडी जो दी गई थी उस पर खाद की बोरी पर चिपें लगी हुई थी। जब हम चिपों पे उन्होंने तरीक़ाकार हमें दिया हुआ था, मैसेज का दिया हुआ था, हमने मैसेज पे जब मैसेज किया है तो उसका आज तक हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला। उसके बाद जब हमने ज़राअत वालों से रब्ता किया है, उन्होंने हमें कहा है कि ऑफिसर ने कि आप फ़र्ज़ मलकियत वगैरह लेके आएँ। पटवार खाने से हमने जब फ़र्ज़ मलकियत ली है तो जब हम ज़राअत ऑफिसर के पास पहुँचे हैं तो उन्होंने कहा ये कानून भी ख़त्म हो चुका है, इस वक्त हम आपको कोई फ़ायदा नहीं दे सकते। हमारा मुतालबा है हुकूमत से, हुकूमत पंजाब से कि हमें इस तरफ की जो भी फैसिलिटी है हमें डायरेक्ट दी जाए, ना कि इस चिप्स पे। हमारा किसान जो है
पंजाब हुकूमत की बनाई हुई ज़री पॉलिसियों से बिल्कुल मुतमिन नज़र नहीं आता। अगर देखा जाए कि वो जो खाद पे और सीड पे उनको सब्सिडी फराहम की जा रही है उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। किसानों का यही कहना है कि या तो इस सिस्टम को जो है किसानों के लिए आसान बनाया जाए, ईजी बनाया जाए, क्योंकि मोस्टली हमारे जो काश्तकार हैं वो नाखानदा हैं, अनपढ़ हैं, उनको इन सिस्टम जो गवर्नमेंट लेके आई है इन सिस्टम के बारे में पता नहीं है, जिससे 60% के करीब जो किसान हैं वो इस डायरेक्ट सब्सिडी से, ई वोचर सब्सिडी से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। आइए इस हवाले से बात करते हैं। जो हमारे नाखानदा किसान हैं, अब ये जट्टों की जो फसल है उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो वैसे अनपढ़ हैं, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं समझते, उनको अवेयरनेस इंतहाई कम है और उनको मीडिया पे इतनी ज़्यादा ये चीज़ नहीं बताई गई। और अगर आप एक छोटा काश्तकार है, अगर वो जिस पे वो 3, 4, 5 बोरी लेता है तो उसके लिए 2200 रुपये की फ़र्द ख़रीद करना, फिर ज़राअत अफसर के पास जाना और वहाँ वेरिफिकेशन के अखराजात बर्दाश्त करना, उसको धक्के लगना, उसका आना, तो वो अपनी इस मुश्किलात की वजह से बेनिफिट लेने ही नहीं जाता। जिससे ये जो करप्ट तौर पर जो अनासर हैं जिनका मकसद भी सिर्फ ये है कि एक आम किसान जो है जो बेनिफिशरी होने जा रहे हो उसको बेनिफिट ना दिया जाए, और ऐसे लोग जो पीछे टेक्निकल मार रहे हैं ताकि लोगों को सब्सिडी देने की बजाय वो जो तमाम बचत है वो अपने पास रख लें। तो आप इनमें 2 ही तरीके किए जा सकते हैं, ये इसको आसान तरीन तरीका हो जो कि हर पढ़ा लिखा अनपढ़ सादा जो है हमारा नाखानदा जो किसान है जो हकीकी तौर पर मुस्तहक है, जो बड़े बड़े काश्तकार हैं जो समझ सकते हैं, जिनको अवेयरनेस है या जिनको वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए तो वो आसानी है। जो हमारा सादा है उसके लिए सादा तरीन बनाया जाए निज़ाम, या सबसे जो बेहतर है जो पहली हुकूमतों ने भी किया है कि डायरेक्ट जो है वो बेनिफिट दिया जाए। आप गंदम की, आप सीड की, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, आप यूनिट की, बिजली की, पैदावारी जो लागत है उसको कम करें ताकि हर आदमी उससे फ़ायदा उठा सके और उसका जब वो उसकी फसल तैयार हो जाए उसको अच्छा रेट दें। अभी हाल ही में हमारे साथ जो ज़्यादती हुई है 1400 रुपये की गंदम ख़रीदने के बाद अब 2400 में हमें नहीं मिल रही, और अभी जो उसका सीड होने जा रहा है वो कम से कम 5000 हमें मन मिलेगा, उसके अलावा मिल ही नहीं सकता। तो इन हालात में हमारी जो दरख्वास्त है वो जो हुकूमत वक्त से है कि वो पिसे हुए किसान को जो उम्मीद की हमारी आखिरी किरण है उसके लिए मेहरबानी करके डायरेक्ट तौर पर उनको जो बेनिफिट है वो दिया जाए ताकि उनकी पैदावारी लागत कम आए और उनको कोई फ़ायदा हो सके। किसान इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। पिछलियां हुकूमतां दे दौरान कम अज़ कम रेट DAP खाद का 2500-2200 रुपये फी बैग सी, यूरिया का 1200 रुपये बैग, और जिहड़ा डीजल सीगा ये 80 रुपये लीटर सी। इस टाइम उहदे मुताबक जिहड़ा रेट चल रहा है हाज़र वक्त दे विच 4000 रुपये DAP, 2000 रुपये यूरिया और 105 रुपये लीटर डीजल है। ये मुताबक किसान नूं की बच रहा है, कोई चीज़ भी नहीं, नुकसान दे जा रहा है। 3 साल तो 2 साल तो नुकसान ही नुकसान है। कुछ बारिशां नाल फसलात खराब हो गई हैं, कपास की फसल तो बिल्कुल ही तबाह हो गई है। बाकी रही धान की फसल, धान के जिहड़े सीड है ये बीज दे विचों कोई अच्छी फसल नहीं निकल रही, यानी कि कोई किसान नूं डायरैक्ट बीज गौरमेंट तो हासिल होवे, ਉਹਦੀ पैदावार अच्छी होवे, प्राइवेट कंपनियां तो या प्राइवेट लोगों तो बीज लैके जिहड़ी काश्त कीती खड़े हैं ये विचों कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा। 2, 3, 4 नस्लों तक मूंजी दे विच बीज इकट्ठे होए है, ਉਹਦੇ विचों ना तो कोई सीड बना सकता है तो ना ही उन्होंने कोई फायदा हासिल हो सकता है। अच्छा रेट मिल ही नहीं सकता। देहात दे विच जिहड़ी दुकान ते या जिहड़े भी असी व्यापारी नूं मूंजी देनी है उन्होंने अपना रेट ही लाना है। ये उत्ते कोई निगरानी की जाए, कोई नोटिस लिया जाए, कोई DCO साहबान है या वजीर खारजा साहब है, असी उहदे हमसाए इस इलाके दे विचों गल कर रहे हैं, उन्होंने तक जो भी फसलात है सीड नूं जा रहे हैं, अच्छा रेट लै रहे हैं, डबल रेट के उत्ते फसलात दे रहे हैं खारजा साहब। लेकिन जिहड़े उहदे हमसाए इत्थे पीछे पे है उन्होंने कोई फसलात खरीद ही नहीं रहा, उन्होंने कोई तवज्जो ही नहीं है इस पासे। ये मेहरबानी करके गौरमेंट नूं तवज्जो करनी चाहिए है और लोगों नूं कुछ ना कुछ तो एहसास होना चाहिए है। गौरमेंट नूं भी लोगों की इन्नी गुरबत आ रही है तो सिर्फ फसलों की वजह तो ही आ रही है। मेहरबानी की जाए तो ये कोई अच्छे इंतजाम किए जान। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में आपने किसान भाइयों की
गुफ्तगू सुनी कि उनको किन मसाइल का सामना है, कौन से मसाइल दरपेश हैं, हुकूमत वक्त को काश्तकारों के लिए क्या करना चाहिए, और हमारे जो अदारे काश्तकार भाइयों के नाम पे दिन रात तशहीर कर रहे हैं उनको वाकई फील्ड में निकलना चाहिए और काश्तकारों के मसाइल उनकी दलहीज़ पे जाके हल करने चाहिए। इसी के साथ अपने भाई अपने वीर चौधरी आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।